Good morning, students. बच्चे, as you all know that in your poverty chapter number 7 we have discussed about what is poverty. This we have already done, and बच्चे, after this we have done about relative poverty, and after this we have done absolute poverty, and along with that I have told you about poverty line, and I have told you about chronic poverty. Then we have done head count ratio, and after that we have discussed on what basis poverty line cutoff to be determined. After this discussion of this point, we have discussed about how is poverty line determined in India. These are the topic जो अभी तक हम आपकी क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा. ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ. व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन, क्रॉनिक पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो, on what basis poverty line cutoff is to be determined, and how is poverty line determined in India. This all topics I have already been told you, and आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए जरा एक बार. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, लेट मी रब इट डाउन. In today's class, beta, we will discuss about trends of poverty in India. What we will discuss? Trends of poverty in India. This is the topic which we will discuss, and for this I need a table in which year-wise number of poor and percentage of poor is written. So this is your year column, and बच्चे after year column your column is of number of poor, and after this you have percentage of poor in total population. What do you have? Percentage of poor in total population. This I am putting full stop because space is not there and I want to use this. And now बच्चे year wise analysis we will do 1960 to 61, then we will do of 1964 to 1965, and after this 70, 71, 73 and 74, and after this बच्चे 1979 to 80 and 1986 to 87, and after this 1987 to 88
1993 to 1994, then बच्चे 1996 to 97, and after that 1999 to 2000, and after 2000 beta 2004 to 2005 and 2009 to 2010, then बच्चे 2011 to 12. About these years we will discuss. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. About these years we will discuss what was the pattern, how was the pattern. Clear बच्चे? Let me make it in a tabular form so that when I will be writing the values, it will become easy for me. And you have to write and learn this table. This is very important table for you to be learned. क्लियर बेटा? दिस आई हैव ट्राई टू मेक इट. ज्यादा सुंदर तो नहीं बना, बट फिर भी मैंने कोशिश की इसको बनाने की. नाउ बच्चे, इन दिस टेबल when we were in year 1960 and 61, the numbers of poors in India was 17 crore. How many number of poors? 17 crore. In year 64-65, the number of poors was 22 crore, and in 70 to 71 it was 25 crore. How much it was? 25 crore. In this year it was 32 crore, here it was 33 crore, and here it was beta 35 crore. Clear? This is the number of poors in crores I am writing. In 1886 and 87 it was 27 crore. How much it was? 27 crore. Clear? 87 and 88 it is 31. Then 93 and 94 it is 32 crore. Then again it was 27 crore. And in 1900 and 2000 it was 26 crore. 4 and 5 it was 40.71 crore. 40.71 crore, and after this it was 35.46. It is 35.46 crore, and 11 and 12 it is 26.93 crore. 26.93 crore. This is the tabular analysis of 1961, 64, 70, 73, 79, 86, 97, 93, 96, 99, 2004. And this it was being analyzed. Clear beta? When we will convert it in the form of percentage of the population, it will come out to be 34%. Then it is 46, 45, 46 in terms of percentage. Then बच्चे 48, 34, and after this 34, 38.9, then 36, and after this 36 it is
29.18, 26.1, and then it was 37.2, 37.2, 29.8 and 21.9 and 21.9. Your this table of poverty is being taken up from the Economic Survey 2013 and 14. From where this table has been taken? Economic Survey 2013 and 14. Clear beta? As per this survey, this data is been available with us. जिसके अकॉर्डिंग बेटा हमें ये पता चलता है, जब हम इसको एनालाइज करते हैं, व्हाट वी कम टू नो दैट, हमें क्या पता चल रहा है, 1960 से 61 में जो नंबर ऑफ पुअर से 17 करोड़ थे. क्लियर. उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ये पॉपुलेशन ऑफ करोड़ में जो है नंबर ऑफ पुअर्स ये बढ़ती चलेगी बेटा. 22, 25, 32, यहां पर आकर थोड़ी सी कम हुई है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट पे थी. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो नंबर ऑफ पुअर्स है वो एक तरह से बढ़ते आ रहे थे, लेकिन एट पॉइंट 2011 और 12 में द सिचुएशन है जो थोड़ी कंपेरेबल, थोड़ी सुधरी हुई है. देखो 21.9% है, जो कि पूरे टेबल का सबसे कम वैल्यू है. क्लियर है बच्चे? शायद आपको समझ आ रहा होगा कि ये ग्राफ, अगर इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करें तो कभी ये ऊपर जाएगा, कभी ये नीचे जाएगा, और फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि 2011 और 12 में जो सिचुएशन थी पॉवर्टी लाइन की, वो 21.9 थी. अब आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि इन ईयर्स में, ये जो ईयर्स है, यहाँ पर कुछ एकदम से बहुत ज्यादा ये बढ़ा है, बहुत ज्यादा उछाल इसमें आया है. तो कैसे कह सकते हैं कि ये इतना एकदम से कैसे इंक्रीज हो गया? बच्चे, इसका और कोई रीजन नहीं था इसके बढ़ने का. इसका बढ़ने का रीजन यही था कि हमने जो अपने स्टैंडर्ड्स थे ना, जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे इसको यूज करने के और पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के, वो थोड़े चेंज कर दिए थे. और 2004 और 5 में हमारा पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिनेशन का जो सिस्टम था वो न्यू पॉवर्टी लाइन में कन्वर्ट हो गया था, और न्यू पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग हमने ये एस्टिमेट्स निकाले थे. इसलिए लग रहा है कि ये थोड़ा एकदम से ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि पॉवर्टी लाइन के जो थे बेटा एस्टिमेट्स, उनको चेंज कर दिया. अभी शायद से आपको ये पूरा टेबल समझ आ गया है. अभी बच्चे मैं इसको इरेज करूंगी. लेट मी इरेज इट आउट. ठीक है बच्चे, साफ तो नहीं इरेज हुआ, बट मैंने कोशिश की इसको इरेज करने की. अभी बेटा, अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे इंटर स्टेट कंपैरिजन. क्या पढ़ेंगे? इंटर स्टेट कंपैरिजन. इस इंटर स्टेट कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगी, जो आपको डिसाइड करना है. जो बेटा मैंने अभी आपको टेबल बताया था, उस टेबल में आपको 2018-19 के डाटा फाइंड आउट करके लिखना है, 19-20 का.
ये 2 ईयर्स का डाटा भी आप उस टेबल के अंदर लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे। अब भी हम आते हैं इंटरस्टेट कंपैरिजन ऑफ पॉवर्टी। क्लियर? इंटरस्टेट कंपैरिजन ऑफ किसका बेटा? किसका? पॉवर्टी का। ठीक है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात जो हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड, वो ये है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन है बेटा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो poverty line is different for different states, is different for different states। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? इस बात का ये मीनिंग हुआ कि हर स्टेट का एक अपना डिफरेंट पॉवर्टी लाइन स्टेटस है, कितने लोग हैं कितने नहीं है। और जो एक सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि कुछ स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बेटा मणिपुर एंड आसाम। मणिपुर एंड आसाम, ये जो स्टेट्स हैं इनमें पाया गया है सर्वे के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो पॉवर्टी का परसेंटेज है, पॉवर्टी परसेंटेज, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन का, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन का जो परसेंटेज है बेटा, वो वेरी हाई है इन स्टेट्स में दैट इज वेरी हाई। क्लियर है? अगर हम इनको रैंक प्रोवाइड करना चाहें तो रैंक के अकॉर्डिंग बेटा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है वो है बिहार में। बिहार को हम रैंक 1 दे सकते हैं। रैंक 1 गोज टू बिहार, मीन्स बिहार में बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पाए जाते हैं एंड दैट पॉपुलेशन इज परसेंटेज इज 33.7%। बिहार में बिहार की आबादी के कितने परसेंट हैं? 33.7%। सेकेंड रैंक हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग टू ओडिशा। सेकेंड रैंक गोज टू ओडिशा। रैंक 2 फॉर पॉपुलेशन ऑफ पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर? फॉर पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, हम इस बात के बारे इसके अकॉर्डिंग रैंक दे रहे हैं बेटा। ठीक है। रैंक 2 गोज टू ओडिशा एंड हाउ मच परसेंटेज इट इज हैविंग? इट इज हैविंग 32.6%। 32.6%। एंड बच्चे रैंक 3 गोज टू मध्य प्रदेश विद 31.7%। गोज टू मध्य प्रदेश विद 31.7%। नेक्स्ट इज बच्चे फोर्थ रैंक गोज टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश with how much percentage? With 29.4। 29.4। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेट वाइज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं बिहार में।
स्टेट वाइज अगर हम कंपेयर करें तो बेटा वो कहाँ है? इन बिहार। क्लियर है? अंडरस्टूड है? अभी मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा अगर बिहार में है तो ये क्वेश्चन आप लोग फाइंड आउट करेंगे, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज मिनिमम। मतलब सबसे कम पॉवर्टी लाइन से कम लोग कहां पर, कौन से स्टेट में रहते हैं इंडिया के। ठीक है, ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क एंड आफ्टर दिस I want you to write it down. I am giving you 2 minutes to write it down. क्लियर है? आप 2 मिनट में इसको जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगी बेटा, थोड़ा जल्दी लिखिए इसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है बेटा इसमें, थोड़ा ध्यान से लिखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिया बच्चे? शायद आप लोगों ने नहीं लिखा तो थोड़ा जल्दी से लिखिए। शायद से आप लिख चुके हैं बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, वो सेम टॉपिक है। अभी तक मैंने उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आपको। अभी मैं आपको 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी, दैट इज अबाउट पंजाब। दैट इज अबाउट पंजाब। पंजाब में ओनली 8.3% ऑफ पीपल रहते हैं बेटा। इन पंजाब ओनली 8.3% of population is below poverty line. क्लियर बेटा? पंजाब में कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे पाए जाते हैं? ओनली 8.3। हरियाणा में बच्चा, इन हरियाणा ओनली 11.2% and in Rajasthan only 14.7% of
population is below poverty line। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स आपको? इंडियन इकोनॉमी एक लर्निंग सब्जेक्ट है बेटा, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पर लर्न करनी पड़ेंगी। So this is all about your interstate comparison. Now I am moving to an important topic. And that important topic is what is that important topic? Urban poverty or spillover of rural poverty. Urban poverty a spillover of रूरल पॉवर्टी। देख रहे हो बेटा क्या कितना बड़ा स्टेटमेंट है। जो अर्बन लोग के जो फेवर में लोग है ना बेटा, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी है वो रूरल पॉवर्टी की वजह से फैली है। स्पिल ओवर मीन्स फैली है, स्पिल ओवर मीन्स फैली है। किसकी वजह से? रूरल पॉवर्टी की वजह से। ये कहा जा रहा है जो अर्बन लोगों के समर्थक जो हैं, जो उनको करते हैं बेटा, मतलब उनको प्रोवोक करते हैं या उनकी साइड लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे अर्बन पॉवर्टी जो है वो क्या कही जा रही है? इट इज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी। उसको स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी कह रहे हैं। वो किस बेसिस पे कह रहे हैं? उनका कहना ये है कि फ्रॉम रूरल एरियाज पीपल come for jobs to urban areas and after so much tryings they do not get the desired job and hence being counted as a urban poor। देखिए क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा कि जो गांव से जो लोग हैं ना, जो गांव से लोग हैं वो शहर में आते हैं काम करने के लिए और उनको शहर में आके उनकी मर्जी से अच्छा काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उन्हें गरीबी में गुजारा करना पड़ता है। और जैसे कि वो शहर में रह रहे होते हैं उस टाइम पे, तो जब भी सर्वे वगैरह होता है तो क्या हो जाता है, सर्वे में उनको पुअर्स में काउंट कर लिया जाता है। कौन से पुअर्स में? अर्बन पुअर्स में। कौन से पुअर्स में बेटा? अर्बन पुअर्स में वो काउंट हो जाते हैं। इज इट क्लियर बेटा? So, my today's topic is going to be over. Next class में क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये खत्म हो चुका है जितना मुझे आज की क्लास में डिस्कस करना था। देखिए बच्चा, अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास में है वो मैं डिस्कस करूंगी रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ पॉवर्टी ट्रेंड्स। क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में? रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ पॉवर्टी ट्रेंड्स। और इसके साथ साथ और क्या डिस्कस करेंगे? रूरल पुअर, अर्बन पुअर, रूरल पुअर, अर्बन पुअर, और इसके साथ साथ ही डिस्कस करेंगे बेटा डिफाइनिंग एंड
defining and redefining the poverty line. ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपना साथ के साथ होमवर्क क्वेश्चंस करते रहे. So this is all about my today's class. Thank you and have a nice day.